عید کی خوشیاں منانے کے لیے گھروں کو جانے والے موت کی وادی میں چلے گئے۔ قومی شاہراہ پر الجہاد چیک پوسٹ اوکاڑا کینٹ کے قریب حادثہ، مسافر بس ٹائر پھٹنے سے الٹ گئی، موٹر سائیکل سوار سمیت 4 افراد جاں بحق، 3 خواتین اور 18 مرد زخمی۔ نعشوں کی شناخت طاہر بی بی، عمران، ارسلان اور طاہر کے نام سے ہوئی۔ سوات میں عید قربان پر امن و امان کی صورتحال یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی پلان جاری۔ عید الاضحیٰ کے ایام میں 656 سے زائد پولیس افسروں اور اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ ڈی پی او دلاور خان بنگش کہتے ہیں عوام الناس کے جان و مال کی حفاظت کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ مزید سخت کر دی گئی۔ عید قربان کے آتے ہی شیر گڑھ میں منافع خوروں نے کمر کس لی، انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ نرخ نامہ نظر انداز، اشیاء خورنوش کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ چینی، گھی، کوکنگ آئل اور مسالوں کی قیمتوں میں اضافہ، مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ دی۔ ڈی ایس پی موٹر وے پولیس بیٹ 19 شجاع آباد کی کارروائی، بین الاضلاعی بکرا چور گینگ گرفتار، لاکھوں روپے کے مسروقہ جانور برآمد کر لیے گئے۔ ایس پی موٹر وے پولیس کی طرف سے بہترین کارکردگی پر ٹیم کو تعریفی اسناد اور نقد انعام دینے کا اعلان۔ عید الاضحیٰ پر سنت ابراہیم کی ادائیگی کے حوالے سے ڈیرہ غازی خان میں چھریاں تیز اور مرمت کروانے کا سلسلہ جاری۔ کاروبار کرنے والوں کی چاندی نرخ بڑھا دیے، مارکیٹ میں 80 سے لے کر 1200 روپے تک چھری دستیاب ہے اور دھار لگانے کے 50 سے 150 روپے تک وصول کیے جانے لگے۔ تھانہ صدر پتوکی کی حدود میں ڈکیتی کی واردات، میاں بیوی شہر سے واپس گھر جا رہے تھے کہ راستے میں 3 ڈاکوؤں نے روک لیا، طلائی زیورات اور موبائل فون چھین لیے۔ پولیس بڑھتی ہوئی وارداتوں کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام۔ اور چشتیاں کے نواحی علاقے مہار شریف کے رورل ہیلتھ سینٹر میں ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف کی منمانیاں، مریض در بدر ہونے لگے۔ 70 سالہ مریض کو علاج کے لیے مہار شریف ہیلتھ سینٹر لایا گیا، لیکن ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف ڈیوٹی پر موجود نہیں تھا۔ اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت تشویشناک حالت میں مریض کو ٹی ایچ کیو ہسپتال میں منتقل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد جنید اعظم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ عید کی خوشیاں منانے کے لیے گھروں کو جانے والے موت کی وادی میں چلے گئے۔ قومی شاہراہ پر الجہاد چیک پوسٹ اوکاڑا کینٹ کے قریب حادثہ، مسافر بس ٹائر پھٹنے سے الٹ گئی، موٹر سائیکل سوار سمیت 4 افراد جاں بحق، 3 خواتین اور 18 مرد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 112 کی ٹیموں نے بروقت رسپانس کرتے ہوئے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے ہسپتال میں منتقل کر دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سوات دلاور خان بنگش نے عید قربان پر شہریوں کے مال و جان کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا۔ عید الاضحیٰ کے ایام میں 656 سے زائد پولیس افسر اور اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ پولیس کے اضافی چیک پوائنٹس قائم کر دیے گئے۔ اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ عوام الناس کے جان و مال کی حفاظت کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اہم مقامات، بازاروں، مویشی منڈیوں، مساجد اور چاہراہوں پر سیکیورٹی کے سخت سے سخت انتظامات کیے جائیں۔ داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ مزید سخت کر دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف رابطہ کمیٹی کے چیئرمین ملک عامر علی کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیری الیکشن میں مخالفین کو ٹف ٹائم دیں گے۔ پی ٹی آئی نے مافیا کے خلاف عام آدمی کو ٹکٹ دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے ملک جنید کی اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ملک کو دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچا دیا تھا، جبکہ تحریک انصاف کی حکومت نے سابقہ حکومتوں کی جانب سے ہونے والی کرپشن کو بے نقاب کیا۔ تحریک انصاف کی رابطہ کمیٹی کے چیئرمین ملک عامر علی نے کے این نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ جی یہ کشمیر کا الیکشن جیسے جی بی کا الیکشن گلگت بلتستان میں آپ نے شمگوئیاں تو پہلے سنی تھی، بہت لوگوں نے اپنے آپ کو منوانے کی وہاں پہ کوشش کی کہ ہم جیتے ہوئے الیکشن ہیں، مگر جیت انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی۔ اسی طرح کشمیر کے الیکشن میں بھی جو
आने वाले दिन फैसला कुन दिन पे आपको पता चल जाएगा कि इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ बारीक सीरियत से जीतेगी और रिकॉर्ड तोड़ेगी अगले पिछले, आप देखेंगे इंशाल्लाह। देखिए जी, पूरी दुनिया में इस वक्त ये जो कोरोना की वबा फैली है, इसमें पूरी दुनिया में यही प्रॉब्लम चल रहा है। इंडस्ट्री बंद हो गई है, कारोबार लोगों के ठप हो गए हैं। पाकिस्तान ने भी तो फिर भी ग्रो किया है। फ्रॉब्स की आपने देखी होगी जो मैगजीन है, जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड मैगजीन है, उसमें पाकिस्तान का 4 उन कंट्रीज का जिक्र है जिसमें जिन्होंने कोरोना की इस वबा में रह के भी ग्रो। देखिए जी, जो तरक्याती काम है, सबसे पहले असद उमर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। बीइंग मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग की है इस्लामाबाद में, और उसके बाद अली नवाज अमान साहब और खुरम नवाज साहब, तीनों हमारे MNAs जो हैं, तीनों हल्कों में बराबर फंड की तकसीम हुई है। कौंसल सुहान हो, बरक हो, तरनोल हो, या रवात का एरिया हो, या किरपा शरा हो, जितने ये एरियाज हैं जो रूरल बेल्ट के हैं, इस दफ़ा ज़्यादा प्रायोरिटी उनको दी गई है। और वो इस वजह से दी गई है कि जो खान साहब का मंशूर था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, 2 नहीं 1 इस्लामाबाद के पैरामीटर में हम चल रहे हैं। और इंशाल्लाह हम उन लोगों को अपलिफ्ट कर रहे हैं कि जो बहुत ही महकूम तबके, सबको पैगाम देना चाहूँगा तमाम इस्लामाबाद के लोगों को वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि जितनी जल्दी वैक्सीनेशन होगी इतनी जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और लोग बाहर निकल सकेंगे, बाज़ार खुले होंगे, कारोबार चलते रहेंगे। क्योंकि अगर वैक्सीनेशन ना की गई और फिर दोबारा ये अगर 4th लेयर या 3rd लेयर ये जब आई तो लोग दोबारा ज़्यादा अगर मुतासर हो गए तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट मजबूर है फिर लॉकडाउन, और लॉकडाउन के नतीजे आप सबको पता है कि बुरे होते हैं, अच्छे नहीं होते। कश्मीर इलेक्शन में जीत के बाद अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे और उनको महकूम नहीं होने देंगे। कैमरामैन फ्रांसिस विलियम के साथ। नाज़रीन, इंतजामिया की तरफ से जारी करदा नेकनामा नजरअंदाज। ईद कुर्बान के आते ही शेरगढ़ में मुनाफाखोरों ने कमर कस ली है। अशाए खुरोनोश की कीमतों को पर लग गए हैं। चीनी, घी, कुकिंग ऑयल और मसालों की कीमतों में इजाफा। चीनी 110 रुपए, घी 315 और कुकिंग ऑयल 360 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। अदरक 630, टमाटर 135, लीमू 150, हरी मिर्च 150, लहसुन 280 से लेकर 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी। सराफा यूनियन पिंडी घेब के सदर सेठ निसार अहमद के साहबजादे नातिक निसार और जहांजेब हाशमी के इश्तराक से सेठ हाजी इफ्तिखार अहमद ने दी बेकर्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में साबिक सूबाई वजीर चौधरी शेर अली खान, साबिक तहसील नाज़िम मलिक लियाकत अली खान, साबिक MPA मेजर रिटायर्ड आजम खान घीबा, मलिक उमर अली खान, मलिक नासर अली खान, चेयरमैन बल्दिया पिंडी घेब आफ्ताब अहमद हैदरी, सेठ वकार अहमद, साबिक असिस्टेंट कमिश्नर मलिक गुलाम रुबानी, साबिक फॉरेस्ट ऑफिसर मलिक गुलाम रसूल, असिस्टेंट कमिश्नर FBR मलिक हारून, सरदार वकार हुसैन, सेठ शाहिद, काउंसलर जफर इकबाल, अंजुमन ताजरान के रहनुमा मलिक नजाकत समेत ताजर, सराफ, वुकला, सहाफी बिरादरी ने शिरकत की। DSP मोटरवे पुलिस बीट 19 शुजाआबाद की कार्रवाई। बैनुल इजलाई बकरा चोर गैंग गिरफ्तार। लाखों रुपए के मसरूका जानवर बरामद कर लिए गए। SP मोटरवे पुलिस की तरफ से बेहतरीन कारकर्दगी पर टीम को तारीफी असनाद और नकद इनाम देने का ऐलान। DSP मलिक एहसान उल हक, इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर और सब इंस्पेक्टर इमरान संधू ने मामूल की गश्त के दौरान मशकूक जानकर कार की तलाशी ली, जिससे 9 मसरूका बकरे बरामद हुए। कस्बा लाड़ के रिहायशी नुमान नामी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईद उल अजहा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के हवाले से जानवरों को ज़िबा करने के लिए डेरा गाजी खान में छुरियां तेज और मुरम्मत करवाने का सिलसिला जारी है। कारोबार करने वालों की चांदी निर्ख बढ़ा दिए। मार्केट में 80 से लेकर 1200 रुपए तक छुरी दस्तयाब है और धार लगाने के 50 से 150 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस साल महंगाई और लोड शेडिंग के सबब कीमतों में 15 से 20% तक इजाफा हुआ है। आजाद कश्मीर इलेक्शन, मलिक नदीम ने पीपल्स पार्टी की फतह की पेशगोई कर दी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से मलिक जुनैद की इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ हुकूमत मुल्क में महंगाई का तूफान लाई है और पेट्रोलियम मसनूआत में
इजाफा करके आम आदमी की ईद उल अजहा की आमद के मौके पर कुव्वत खरीद मुतासिर हुई है। सीनियर नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद मलिक नदीम ने KN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने अपना मंशूर दिया था ना, वो लोगों को समझ आ गई है कि उसमें से कोई एक चीज़ उन्होंने, जो आप देख लेना उस टाइम इमरान खान साहब कहते थे कि पेट्रोल या महंगाई जो है वो जो करता है वो चोर होता है। तो अभी महंगाई के क्या हालात हैं, या पेट्रोल अभी देखें आपने, आपके सामने ईद का तोहफा खान साहब ने दिया है लोगों को पेट्रोल की महंगाई के लिहाज से। तो लोगों को अब सारा उनका बयानिया समझ आ गया कि वो सारा झूठ ही था, झूठ बोल के उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, अब वो झूठ उनका मुश्किल चले। बेसिकली कश्मीर इलेक्शन हमेशा मरकज़ के साथ ही चलता है, लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट ने जो महंगाई का तोहफे तवाइफ दिए हैं आवाम को नज़र आ रहा है, और स्पेशली कश्मीर को उन्होंने जो दे दिया इंडिया को, वो एक बड़ा इशू बना हुआ है उनके लिए। और दूसरी जो बात है, ऑलरेडी नून लीग की गवर्नमेंट थी तो लोगों को उनकी भी सारी चीज़ें सामने, इंशाअल्लाह अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छे मार्जिन से गवर्नमेंट बनाएगी। देखें, इसीलिए तो वो अब इस टाइम बहुत ज़्यादा रोड्स गलियों का काम करवा रहे हैं कि जी आवाम को थोड़ा सा सहारा आसरा मिले। लेकिन कहने का मकसद ये है कि रोडों से, और उनका कहना ही यही था कि रोडों से और गलियों से आवाम को सहूलत नहीं मिलती। आवाम को उन्होंने क्या दिया है? आवाम को सिवाय भूख के और परेशानी के और उसके सिवा कुछ भी नहीं मिला। इस टाइम जो उन्होंने कहा था वो किसी किस्म का कोई उन्होंने काम पूरा नहीं किया। ईद उल अजहा की आमद और कोरोना वबा के खतरे के पेश नज़र उनका कहना था कि मैं तो सबसे पहले तो तमाम मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और उसके साथ साथ कोरोना के हवाले से कहूँगा कि अपने एक दूसरे से फासला कायम रखें, और ये बड़ी ख़तरनाक मर्ज़ है, इससे थोड़ा एहतियात करें ताकि किसी को नुकसान ना हो। कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है और पीपल्स पार्टी कश्मीर इलेक्शन में अपनी भरपूर पावर दिखाएगी और तब्दीली सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। कैमरामैन फ्रांसिस विलियम के साथ। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। मवेशी मंडियों में रश, कम कीमत पर मनपसंद जानवरों की तलाश जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं शुजाबाद से राना जावेद की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक शुजाबाद में भी मवेशी मंडी के रौनक अरूज पर शहरियों को कम कीमत और पसंदीदा जानवरों की तलाश जारी। खरीदारों और व्यापारियों में बहस व तकरार। मंडी में मुख्तलिफ काउंटर भी लगाए गए हैं, जिसमें सिक्योरिटी, जानवरों के लिए डिस्पेंसरी और वेटरनरी की सहूलियात भी दी गई हैं। एक साल पूरा इनको जानवरों को पालते हैं, अपना गंदम डालते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं किसान तैयार पूरा साल का खोलना बांधना, इसके पैसे जो है वो डाउन हो जाते हैं। फिर उसके बाद साल के बाद 5-2 हज़ार 10 हज़ार तक अगर एक साल में एक पकड़ में बढ़ता है तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें जो है ना, ये ठीक वो बात करते हैं, हर चीज़ महंगी है। कौन सी चीज़ सस्ती है? कोई चीज़ सस्ती नहीं है। छोटे से बच्चे अभी देख भी रहे हैं, ज़्यादा चीज़ बकरी खाते करते हैं हम, उसका रेट बहुत ज़्यादा है। ये गरीबों की पहुँच से बहुत दूर है, लिहाजा कुछ रेट भी कम होना चाहिए। और गवर्नमेंट से हमारी अपील है, ये मंडी हमारी यहाँ लगी है, बहुत छोटी मंडी है, छोटी बड़ी वसी की है, 2 जगह हैं। ये छोटी सी जगह है, यहाँ वसी की है। जी, जैसे कि आपने सुना कि इस साल जो है महंगाई बहुत ज़्यादा है पिछले साल की निस्बत। गाहक मंडियों को रुख तो करते हैं लेकिन घूम फिर के वापस चले जाते हैं। कैमरामैन टीम के साथ राना जावेद। पाक पतन इंतजामिया कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए इन एक्शन। शहरियों में 15,000 बैग्स आगाही पंफलेट तकसीम किए गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। पाक पतन में जिली इंतजामिया ने ईद कुर्बान पर शहर को साफ सुथरा रखने और आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए शहरियों में 15,000 शॉपर बैग्स के साथ आगाही पंफलेट तकसीम किए। पंजाब हुकूमत की हदायत पर शहर को साफ सुथरा रखने और ईद कुर्बान पर आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए जिली इंतजामिया ने खुसूसी सफाई प्लान तश्कील देकर शहर में 9 कैंप कायम कर दिए हैं।
ADCR माहिम आसिम मलिक, CO बल्दिया मलिक असलम जावेद ने मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों में अलाइशें डालने के लिए 15,000 बैग्स और हेल्पलाइन पंफलेट तकसीम किए। शहरी जानवरों की अलाइशें बैग्स में डालकर घर के बाहर रखेंगे और MC का अमला फौरी तौर पर इसे उठाकर ठिकाने लगाने में अपना किरदार अदा करे। पंफलेट तकसीम के मौका पर ADCR का कहना है कि ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई सुथराई का खास ख्याल रखने के लिए आज हमने गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए शॉपर्स और पैम्फलेट्स लोगों में तकसीम किए हैं। तकरीबन 15,000 के करीब गवर्नमेंट ने पैम्फलेट छपवाए और शॉपर्स छपवाए हैं जो लोगों में तकसीम किए गए हैं ताकि ईद उल अज़हा के दौरान गंदगी हमें जगह जगह पे पड़ी हुई नजर ना आए। इसके अलावा हमने टीमें भी तश्कील दे दी हैं। देखो कोई आलाइशें या कोई गंदगी नजर आएगी वो हमारे दफातर में कंट्रोल रूम में राब्ता भी कर सकता है। हमारा शहर पाक पतन हमेशा की तरह साफ सुथरा रहे। सिलसिले में हमने 9 सेक्टर बनाए हैं जिसमें 9 सेक्टरों के हर जगह अलग-अलग कैंप बनाए गए हैं जिसके लिए हर वक्त हमारे सुपरवाइजर और 3-3 रक्षे हर सुपरवाइजर को हमने अलर्ट किए हैं ताकि वो अपनी गली मोहल्लों से लाशों को लाकर वो फील्ड डिपो तक पहुंचाएं। ईद कुर्बान पर शहर को साफ सुथरा रखने और लाशों को बर वक्त ठिकाने लगाने के लिए टंडोवाला यार में अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कुव्वत खरीद जवाब दे गई। दुकानदार मन मर्जी के रेट वसूल करने लगे। मजीद जानते हैं नदीम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। बड़ी ईद पर बड़ी महंगाई। ईद कुर्बान से कबल टंडोवाला यार में महंगाई का तूफान बरपा हो गया। अशिया खुर्दनोश की कीमतों के साथ ही टमाटर की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। 40 रुपए किलो फरोख्त होने वाला टमाटर 150 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। ईद के नजदीक आते के साथ ही घाटे वालों को तो हर कोई बोल देता कि भाई आपने कल 60 रुपए दे दिया, आज 100 रुपए दे रहे हो। लेकिन जो बड़े बड़े माशाखोर और व्यापारी बैठे हुए हैं वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई इंतजाम या पूछने वाला है कि भाई ये पेटी कल आपने 800 की दी थी, आज 1600 रुपए की दे रहे हो। तो इस चीज में कुछ कंट्रोल होगा ताकि गरीबों को जो है कुछ रिलीफ मिल सके। टमाटर समेत दीगर सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हुआ। हरी मिर्ची 120 रुपए किलो, प्याज 60 रुपए किलो, लीमू 120 रुपए किलो, हरा धनिया 200 रुपए किलो, जबकि लहसुन 200 रुपए, अदरक भी महंगा होकर 600 रुपए तक पहुँच गया। डबल पे भी तिबुल होगी महंगाई। अब हम लेने जाते हैं माल वहाँ से मंडी से, आज 800 रुपए, कल 1600 रुपए, 2000 रुपए, कुल सारा दिन में बैठ के 700 रुपए का धंधा करा। खुद खावे, घर वालों को देवे, किरायादार देवे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ईद से कबल सब्जी की बढ़ती कीमतों को कम करके आवाम को रिलीफ फराहम की। नाजरीन, चीचा वतनी में थाना शाहकोट के निवाही गांव 2214L में जमीन के तनाजे पर फायरिंग से नौजवान कत्ल। मोहम्मद इरफान भाइयों के हमरा भैंसों को नहर 14L से पानी पिलाने के बाद वापस आ रहा था कि दरख्तों के पीछे घात लगाए मुलजम मोहम्मद अमीन, खुदा यार और दीगर 6 साथियों ने हमला कर दिया। मोहम्मद इरफान जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर दम तोड़ गया। 2 भाई जख्मी हो गए। वाकई की इत्तला मिलते ही SHO थाना शाहकोट गुलाम फरीद मौका पर पहुंचे। पुलिस ने नाश जरूरी कार्रवाई के लिए THQ अस्पताल में मुंतकिल कर दी। तनाजे पर अब तक 4 कत्ल हो चुके हैं। थाना सदर पतोकी की हुदूद में मेगा रोड जमशेर अड्डा के करीब डकैती की वारदात। मियां बीवी शहर से वापस घर जा रहे थे कि रास्ते में 3 डाकुओं ने रोक लिया। तलाई जेवरात और मोबाइल फोन छीनने के बाद एक डाकू ने खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। ठरी मीरवा के निवाही गांव शाह मोहम्मद लगारियो गिरदोनवाह में आवारा कुत्तों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। 12 साल लड़के आमिर पर कुत्तों का हमला काट कर जख्मी कर दिया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। शिकायत के बावजूद टाउन इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। बजट अपनी जेबों में डालने के लिए कागजी तौर पर कुत्ता मार मुहिम कामयाबी के साथ जारी है। शहरियों ने आला हुकाम से पुरजोर अपील की है कि जानो माल का तहफ्फुज फराहम किया जाए।
चिश्तिया के निवाही इलाके मुहार शरीफ के रूरल हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की मनमानियां। मरीज दर बदर होने लगे। 70 साल मरीज को इलाज के लिए मुहार शरीफ हेल्थ सेंटर लाया गया, लेकिन डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत तशवीशनाक हालत में मरीज को THQ अस्पताल में मुंतकिल किया। मरीज के अहले खाना का कहना है कि ड्यूटी औकात शुरू होने के बावजूद अस्पताल में कोई एहलकार मौजूद नहीं था। शहदाद कोट का रुख करते हैं, जहां पर मुख्तलिफ नहरों में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। GDA के रहनुमा एडवोकेट मीर मुजफ्फर खान बरूही की कॉल पर एहतजाजी रैली निकाली गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल हमीद भट्टी की इस रिपोर्ट में। इस वक्त शहदाद कोट में शाम गरीबा का मंजर है। जिला कंबर शहदाद कोट की आवाम पानी की बूंद बूंद के लिए तरस गया। पानी की शदीद किल्लत पर GDA के रहनुमा एडवोकेट मीर मुजफ्फर खान बरूही की कॉल पर लोगों का समंदर रोडों पर निकल आया। बस एक ही नारा था कि पानी नहीं क्यों भला, कर भला कर भला। प्रेस क्लब शहदाद कोट से लेकर कोटू मोटू चौक तक बहुत बड़ी रैली निकालकर 5 घंटे धरना दिया गया। मीर मुजफ्फर खान बरूही और दीगर ने बात करते हुए कहा कि अब इस बार बदकिस्मती ये है कि हमारे लोकल गवर्नमेंट जो है, हमारी सिंध गवर्नमेंट के जागीरदार, उनके वडेरे, स्पेशली सिंध के हर हल्के, हम समझते हैं कि ये सिंध के लाल हुक्मरान हैं। सिंध को, शहदाद कोट को इन्होंने तबाह कर दिया गया है। आज ये हजारों लोगों का रेफरेंडम है और ये उस मौके पर PTI के रहनुमा मीर गैबी खान मुगेरी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। नाराज होगी तो हमें क्या करेंगे? हम जो नाल होगा तो उसको नाल कहेंगे ना। हम तो इमरान खान को रिक्वेस्ट करते हैं कोई सिंधी नया गवर्नर लाए, इसको निकाले। और इमरान खान को अपील करते हुए कहा कि फिलफौर मौजूदा गवर्नर को हटाकर नया गवर्नर तैनात किया जाए। कैमरामैन राजा अल्ताफ के साथ DSP मोटरवे पुलिस हमीदुल्लाह खान नियाजी की ज़ेरे एहतमाम बीट नंबर 17 के अफसरों और एहलकारों की मीटिंग। DSP हमीदुल्लाह खान ने हिदायत देते हुए कहा है कि ईद उल अजहा के मौका पर भी बेहतरीन अंदाज में ड्यूटी सर अंजाम दी जाए। इस हवाले से मजीद जानते हैं मियां चन्नू से मनान चौधरी की इस रिपोर्ट में। DSP मोटरवे पुलिस हमीदुल्लाह खान नियाजी के ज़ेरे एहतमाम मोटरवे पुलिस बीट नंबर 17 के तमाम अफसरान और एहलकारान की मीटिंग हुई। मीटिंग में DSP हमीदुल्लाह खान नियाजी ने तमाम अफसरान को हदायत देते हुए कहा, तमाम अफसरान और एहलकारान हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी ईद उल अजहा के मौके पर भी अपनी ड्यूटी बेहतर तरीके से सर अंजाम देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईद उल अजहा के मौके पर ट्रैफिक बढ़ने से अवाम की शदीद मुश्किलात दरपेश होती हैं। ख़ास तौर पर बस हजरात की जानब से मुसाफिरों से ज़्यादा किराया वसूल किया जाता है, जबकि ओवर लोडिंग वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जराइम पेशा अफराद पर भी ख़ास नज़र रखी जाएगी। अवाम मोटरवे पुलिस के साथ मुकम्मल तावन करें। मीटिंग में शरीक तमाम अफसरान और एहलकारान ने अपनी ड्यूटी बेहतर अंजाम देने के लिए अज़म किया। चौधरी मनान कोहिनूर। बाकिर हुसैन का कहना है कि ईद उल अजहा पर किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। आप इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 बाकिर हुसैन ने कहा कि ईद उल अजहा पर हम किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार हैं। हमने अपना सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया है। 36 एम्बुलेंस 50 मोटर बाइक सर्विस मौजूद है जो 24 घंटे किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 बाकिर हुसैन ने कोहिनूर से गुफ्तगू करते हुए बताया, रेस्क्यू 1122 ईद उल अजहा पर तमाम तर तैयारियों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी परफॉर्म करेगी। इसमें हमारी 36 एम्बुलेंसेज हैं, 50 मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विसेज हैं और 7 के करीब हमारी फायर रेस्क्यू व्हीकल्स हैं। और इनके साथ साथ हम डिफरेंट शहर में की पॉइंट्स बनाएंगे। जो हमारे 9 की पॉइंट्स होंगे वो डिफरेंट प्लेसेस पे होंगे जहाँ पे हम मैक्सिमम कवरेज कर सकें, ताकि किसी भी खुदा न खास्ता किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हम टाइमली रिस्पांस कर सकें। और इसके साथ हमारी जितनी तहसील्स हैं बहावलपुर में, जैसे हमारी हासिलपुर है, अहमदपुरा और यजमान और अहमदपुर शर्किया, वहाँ पे भी हमारा कंटीजेंसी प्लान जो इम्प्लीमेंट होगा, वहाँ पे भी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं।
और 400 के करीब हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो ड्यूटी परफॉर्म करेंगे और तमाम लोगों की हमने छुट्टियां जो हैं वो मनसूख कर दी हैं ताकि हम मैक्सिमम लोगों को कवरेज कर सकें। और साथ साथ कोरोना के रिलेटेड मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे आपको मालूम है कि नए सिरे से दोबारा कोरोना बढ़ रहा है और इस ईद के ऊपर आप लोगों से गुजारिश है कि एहतियात कीजिए और साथ साथ आप लोग अपनी वैक्सीनेशन करवाएं जो बहुत ही ज़रूरी है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपनी मैक्सिमम लोग अपनी वैक्सीनेशन करवाएं ताकि हम इस वबा से बच सकें। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर साजिद कयानी की हिदायत पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी हैं। सांदा पुलिस ने मंशियात फरोश 2 भाई गिरफ्तार कर लिए। 4 किलो से ज्यादा चर्स बरामद। मोहम्मद अली और शेर अली मंशियात कोयटा से लाकर लाहौर में फरोख्त करते थे। मुकदमा दर्ज करके मुलजमों को मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। ये वसीम, अपडेट कीजिएगा। मुलजमान को है जिसका नाम मोहम्मद अली और अली शेर है, ये दोनों पठान है और इनका ताल्लुक जो है वो कोयटा से बताया जाता है। ये लाहौर में तलीमी इदारों के गिरदोनवा में मंशियात फरोशी करते थे जिनको जो है वो सांदा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि इनके कब्जा से 4 किलो आला क्वालिटी की मंशियात बरामद करके 9C का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजमान के अगर हवाले से बात की जाए तो जब मेरी SHO सांदा से बात हुई तो उनका कहना था मोहम्मद अली और अली शेर दोनों सगे भाई हैं जो कि मंशियात फरोशी करते हैं, जबकि इनका तीसरा भाई जो इससे कबल मंशियात फरोशी करने के जुर्म में जेल में जा चुका था, अभी हाल ही में वो जो है वो रिहा होकर लाहौर आया है और यहाँ पर मंशियात फरोशी कर रहा है। बात की जाए अगर मुलजमान की, मुलजमान जो है वो लाहौर के तलीमी इदारों के गिरदोनवा में जो है वो कोयटा और दीगर कबायली इलाकों से मंशियात लाकर यहाँ फरोख्त करते थे, जिनको जो है वो मुखबिर खास की इत्तला पर रात गए गिरफ्तार किया गया। आज अगर बात की जाए तो दोनों को जो है वो गिरफ्तार करके 9C का मुकदमा दर्ज किया गया है और तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले की गई है। दोनों मंशियात फरोशों के हवाले से बात की जाए तो साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, इससे कबल भी ये मंशियात फरोशी करते हुए पकड़े गए थे। इनके खिलाफ जो है वो 9C का मुकदमा दर्ज किया गया था। जब मुलजमान से मेरी बात हुई तो मुलजमान का यही कहना था कि रोजी रोटी कमाने के लिए ये धंधा जो है वो यूज किया और यहाँ से पैसे जो है वो अच्छे मिल जाते थे, लेकिन जो है वो जिस तरह से पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया तमाम के तमाम पैसे जो है वो हमारी जमानतों पर लग जाएंगे। लेकिन ताहाल SHO का भी यही कहना था कि ऐसे मकरूह धंधे से मेहनत मजदूरी बेहतर है, जबकि दोनों मुलजमान मोहम्मद अली और अली शेर को जो है वो पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करके 9C का मुकदमा दर्ज किया गया है। जिस तरह से CCPO लाहौर और DAG ऑपरेशन तमाम लाहौर के SHO को हर मीटिंग में कहते हैं कि तलीमी इदारों के गिरदोनवा में मंशियात फरोशी करने वालों के खिलाफ जो है वो क्रैक डाउन किया जाए, उसी पर जो है वो SHO सांदा शेख खालिद फरूक ने अपनी टीम के हमरा छापा मारकर दोनों मुलजमान को गिरफ्तार किया है, जबकि DAG ऑपरेशन और SP इकबाल टाउन मोहम्मद अवैस की जानिब से SHO सांदा और उनकी टीम को नकद इनाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। जी वसीम साबिर, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। ईद उल अजहा के मौका पर पाकिस्तान रेलवे पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए SP रेलवे मलिक मोहम्मद अतीक ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अली हसन की इस रिपोर्ट में। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात कर दिए गए हैं। मुल्क भर के तमाम रेलवे स्टेशन और ट्रेनों पर रेलवे पुलिस की जानिब से नफरी भी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही अहम तंसीनात और रेलवे स्टेशन के दाखिली और खारजी रास्तों पर रेलवे पुलिस के कमांडर तैनात कर दिए गए हैं। SP पाकिस्तान रेलवे पुलिस मलिक मोहम्मद अतीक का रेलवे स्टेशन लाहौर पर सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा भी लिया गया। देखिए, पुलिस का अगर कांस्टेबल भी है, हेड कांस्टेबल है, SP है, हम सब एक टीम है और टीम बनकर हम काम करते हैं, अवाम की खिदमत करते हैं और अवाम के लिए ये मैसेज देते हैं कि आप आएँ, हम मुहाफ़िज़ हैं आपके और आपकी हिफाजत करेंगे। यकीनन हम आज जब मैं गया हूँ, हमारे तमाम मुसाफिरान मुख्तलिफ कैटेगरी के मुख्तलिफ क्लास के लोग होते हैं, जब उनके साथ मिलते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो यकीनन हमारी एक्सेस या उनकी एक्सेस हम तक बहुत आसानी से हो जाती है। उनके मसाइल सुनते हैं, उनसे पूछते हैं कोई इशू है, किसी के साथ कोई मसला हो गया है, तो अब जब मैं जाता हूँ तो यकीनन वो लोग सुनते हैं कि SP साहब आए हैं, तो इनके तक हमारी रसाई हो गई है तो हम अपने मसले को बयान करें। मेरा बुनियादी तौर पे मकसद भी यही होता है कि लोगों की एक्सेस को जो है ना
बहुत यानी उसको फिजिकली मुमकिन बनाया जाए। तो जब हम खुद स्टेशन पे जाकर रेलवे मुसाफिरों से उनकी तकलीफ के बारे में और उनके मसाइल के बारे में जब हम पूछते हैं तो वो बिल्कुल बेखौफ ख़तर वो हमसे बात करते हैं। मैं मौके पर ही वहाँ हदायत जारी करता हूँ। 2-3 मुसाफिर ऐसे थे जिनको छोटे छोटे मसाइल थे, उनको हल किया है और उनकी मदद की है। तो मकसद तो यही है कि खिदमत खलक है और रेलवे मुसाफिरों की मदद। कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जा रहा है। बगैर मास्क के रेलवे स्टेशन पर दाखिला बिल्कुल ममनू कर दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम है, ईद उल अज़हा जो है एक ऐसा मौका है कि लोगों ने अपने घर को जाना होता है और रेलवे स्टेशन पे भी मुसाफिरों का रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो IG रेलवे पुलिस आरिफ नवाज खान साहब हैं, उनकी तरफ से रेलवे पुलिस की तमाम डिवीजनों के SPs को तहरीरी अहकाम जारी किए गए हैं कि सिक्योरिटी के जो है बेहतरीन इंतजाम किए गए, मुसाफिरों की जान माल को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। और साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की चौथी लहर जो है वो हमारे पूरे मुल्क में जो है फैल रही है, उसके पेश नज़र IG साहब के जो है हमें अहकाम हैं कि कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाए। और खास तौर पर जो फेस मास्क है, हम आवाम से भी अपील करते हैं कि ट्रेन में सफर के दौरान फेस मास्क को किसी को यकीनी बनाएं। जिस मुसाफिर ने मास्क नहीं पहना उसको स्टेशन की दूर में दाखिल नहीं होने दिया। रेलवे मुसाफिरों से इल्तमास है कि वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें ताकि खुद को और अपने प्यारों को महफूज रख सकें। कैमरामैन रफीक अंसारी के साथ अली हसन। मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह नारोवाल में भी बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। डिप्टी कमिश्नर लॉन्ग शूज पहनकर खुद पानी में खड़ी होकर मुलाजमीन को ब्रीफिंग भी देती रही। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत के मुताबिक नारोवाल की डिप्टी कमिश्नर नबीला इरफान ने जफरवाल रोड, चंदपीर रोड, शकरगढ़ रोड के निशेबी इलाकों का दौरा किया, जबकि DC नारोवाल ने म्यूनिसिपल कमेटी को पानी की निकासी के बाद जल्द अज जल्द गंदगी को साफ करने की हिदायत भी जारी की। डिप्टी कमिश्नर की इन काविशों को सराहते हुए इलाका के लोगों ने दिल खोलकर दाद दी। आपको बता रहे हैं कि मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह नारोवाल में भी बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। डिप्टी कमिश्नर लॉन्ग शूज पहनकर खुद पानी में खड़ी होकर मुलाजमीन को ब्रीफिंग भी देती रहीं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत के मुताबिक नारोवाल की डिप्टी कमिश्नर नबीला इरफान ने जफरवाल रोड, चंदपीर रोड, शकरगढ़ रोड के निशेबी इलाकों का दौरा किया, जबकि DC नारोवाल ने म्यूनिसिपल कमेटी को पानी की निकासी के बाद जल्द अज जल्द गंदगी को साफ करने की हिदायत भी जारी की। डिप्टी कमिश्नर की इन काविशों को सराहते हुए इलाका के लोगों ने दिल खोलकर दाद दी। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का मीनार पाकिस्तान, रेलवे स्टेशन, लारी अड्डा और भाटी चौक का दौरा। निकासियाब के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर मलिक आयान। जी आयान, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर का निकासियाब ऑपरेशन जायजा लिया गया है शहर लाहौर में। कमिश्नर लाहौर ने जो है रेलवे स्टेशन मीनार पाकिस्तान, लारी अड्डा, भाटी चौक का भी जो है दौरा किया है। कमिश्नर लाहौर ने यादगार, लक्ष्मी चौक, गुर्जी करपा चौक, मजंग के इलाकों में निकासियाब को जो है वहाँ पर जहाँ के मुलाजमीन मौजूद थे उनके जो काम जारी है उसको जो है उन्होंने मॉनिटर किया, जबकि बापर मुतल्लिका महकमे जानशानी से काम कर रहे हैं। कमिश्नर लाहौर ने ये कहा है, जबकि कमिश्नर लाहौर कैप्टन उस्मान ने कहा कि लाहौर के उत्तरी इलाकों में निकासियाब ऑपरेशन जो है तकमील के करीब पहुंच चुका है, जबकि सुरंग पॉइंट पर पूरी ऑपरेशन फाल करने पर बर वक्त निकासी हो रही है। कमिश्नर लाहौर के दौरे के दौरान जो है MD बासा सैयद जहाद भी मौजूद थे, जबकि DC लाहौर मुफ्ती मलिक भी वहाँ पर मौजूद थे। अंडर पासिस मुकम्मल तौर पर क्लियर है। जो वहाँ पर अंडरटेकिंग जो वहाँ पर जो पानी खड़ा हुआ है वहाँ पर जो टैंकर जो वो भिजवा देंगे और वहाँ पर पानी को जो निकाला जा रहा है। लाहौर में तकरीबन 80% से ज्यादा जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी को फौरी तौर पर निकाला जा चुका है। अब तक जाने की चीज आयान मलिक, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।